Good morning, dear students. So, students, we are going to start today new chapter. That is chapter number 6. Cannot survive without food. Now, here I want to clear one thing to you all. Students, in your workbook, the chapter's name is different, and in textbook, the chapter's name is different. In workbook, it is written as this: cannot survive without food, and in textbook, it's written as foods we eat. Okay. Lesson number 6, foods we eat. See, in your textbook it's written as foods we eat. So, let's read and understand. First, this boy is telling, last night I ate a chapati made of bajra with jaggery. What he is saying? That he ate chapati. इसने क्या खाई? चपाती खाई. और जो किससे बनी हुई थी? बाजरे की बनी हुई थी. With jaggery. Jaggery means गुड़. गुड़ से उसने बाजरे की चपाती खाई. This boy is saying. Now what this girl is saying? I cooked dal and rice. Now what she is saying? She cooked dal and rice. क्या बनाया उसने? Dal and rice. Yesterday no food was cooked in my house. Now what she is saying? Yesterday तो मेरे घर में कोई खाना ही नहीं बना. ऐसा होता है ना? कब होता है? जब हम बाहर जाते हैं खाना खाने. Now what this is saying? He is saying, I went to the Gurudwara with my grandmother for the langar. We ate dal and chapati. Now he is saying he went to Gurudwara with his grandmother, and what did he eat? He ate there dal and chapati. क्या खाया उसने? Dal and chapati. Now next. My mother cooked idli. I ate lots of it. It was really tasty. Now what this girl is saying? She is saying she ate idli. उसने इडली खाई और उसने बहुत सारी खाई. क्यों? क्योंकि वो उसको बहुत टेस्टी लगी थी, है ना. जब हमको कोई फूड बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है तो हम क्या करते हैं? बहुत ज्यादा खा लेते हैं. Now next, this girl is saying, Ami had cooked खीर. अम्मी ने क्या बनाई? खीर बनाई. And पूरी, which I don't like. So I ate and chilla instead. अब उसकी मम्मी ने खीर पूरी बनाई थी, पर उसको तो वो पसंद ही नहीं थी, तो उसने क्या खाया? फिर बना के चिल्ला खाया. Now what this boy is saying? He's saying, my brother brought dabeli for us from the house where she works. We enjoyed eating it. Now, what do you understand by this? What they are discussing? They are discussing about their food. तो क्या सबने सेम खाना खाया है? No, सबने अलग अलग खाना खाया है. तो it means we have varieties of food in our day-to-day life. किसी ने दाल रोटी खाई, किसी ने दाल राइस खाया, किसी ने दाल चपाती खाई, किसी ने तो फूड ही नहीं खाया, किसी ने बाहर से खाया. So everybody ate different kinds of food, है ना, in our day-to-day life. So let's understand Vipul's family. There are 4 members in Vipul's family. How many members are there in his family? 4 members. There are some members who do not eat what Vipul eat. अब उसकी फैमिली में कुछ ऐसे मेंबर्स हैं कि जो खाना विपुल खा सकता है वो दूसरे मेंबर्स नहीं खा सकते हैं. डू यू थिंक दीज पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट व्हाट विपुल ईट्स? क्या आपको लगता है कि क्या वो खाना ही नहीं खा सकते या फिर वो खाते ही नहीं है? दे डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट व्हाट विपुल ईट. जो विपुल खाता है उनको खाना नहीं है या फिर वो खा नहीं सकते हैं. Why should this happens? ऐसा क्यों होता है? So let's read about Vipul's family and understand. While returning home from school, Vipul bought a bhutta, corn on the cob. Now, what did Vipul bought? Vipul bought a bhutta when he was returning from school to home. He bought bhutta. He reached home and asked his mother. When he reached home, he asked his mother. उसने अपनी मम्मा से पूछा. क्या पूछा? Where is Munni? मुन्नी किधर है? I
in the upstairs. इसकी मम्मा क्या रिप्लाई करती हैं कि मुन्नी किधर है, ऊपर है. Vipul caught his grandmother's hand and said, "You also come upstairs with me." विपुल अपनी दादी का हाथ पकड़ता है और उनको बोलता है आप भी मेरे साथ ऊपर चलो. His mother stopped him. उसकी मम्मी ने उसको बोला wait, I have soaked Ba's chapati in dal. Let her first have her meal. अब मम्मी क्या बोलती है कि मैंने बा की चपाती दाल में सोक कर दिया, मीन्स दाल में डिप कर दिया अच्छे से. पहले बा खाना खा ले, उसके बाद. Now, have you put sugar in the dal? Said Dadi to Vipul's mother. Now, what Dadi is saying? Dadi is saying to her, क्या आपने दाल में शुगर डाली है? ऐसा वो पूछती हैं. किसको? विपुल की मामा को. I have tasted the dal. उसकी मामा बोलती है मैंने दाल टेस्ट कर ली है. It has been prepared well. बहुत अच्छी बनी है. Replied Vipul's mother. Vipul picked up his grandmother's plate and ran upstairs. Now what did Vipul doing? Vipul ने प्लेट उठाई और वो ऊपर भाग गया. He asked her to follow him quickly. उसको बोलता है दादी मुझे जल्दी से मेरे पीछे आओ. When I was of your age, I could run up the hills in the same time, said दादी. दादी ने बोला जब मैं तुम्हारी एज की थी तब मैं भी फटाक से चढ़ जाती थी, हिल्स पे भी चढ़ जाती थी. Vipul gave the butta he was eating to his mummy, washed his hands and lifted little Munni. उसने वो बुट्टा दे दिया उनको और फिर उसने अपने हैंड वॉश किए. क्यों? क्योंकि मुन्नी कौन थी? उसकी छोटी बहन थी. Suddenly Munni started crying. She is hungry, said Mummy. She sat down to feed Munni. Now क्या हुआ? वो रोने लगी. That means she is hungry. तो क्या हुआ फिर? She sat down and feed Munni. Now इस स्टोरी से हमको क्या सीखने मिलता है? इस स्टोरी से हमको ये सीखने मिलता है कि हम लोग जो खाते हैं वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स नहीं खा सकते हैं, उनको अच्छा भी नहीं लगता है. और जो हम लोग खाते हैं वो क्या 4 months का बच्चा खा सकता है? नहीं खा सकता. दैट मीन्स द फूड हैबिट ऑफ ईच एज इज डिफरेंट. सब एज ग्रुप्स की फूड हैबिट कैसी होती है? डिफरेंट होती है. ओके, तो क्या मुन्नी भुट्टा खा पाएगी? वो तो एक छोटी सी बेबी है. नहीं खा पाएगी. क्या दादी भुट्टा खाना पसंद करेगी? नहीं, दादी को क्या अच्छा लगेगा? दाल एंड रोटी. सो अकॉर्डिंग टू द एज द फूड हैबिट इज ऑल्सो डिफरेंट ऑफ एवरीवन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स नो व्हाट पीपल लाइक टू ईट. फर्स्ट दिस गर्ल हैंसी को क्या पसंद है? आई लिव इन वलसाड. माय मदर एंड आई both love to eat undayu. क्या? Undayu. Whenever we feel like eating it, we go to our farmhouse and eat undayu like undayu. It's undayu like undayu. They love to eat undayu. This is one type of Gujarati dish. Gujarati people make this dish undayu. Okay students, now this Julie. What do Julie like? I live in Kashmir. Julie कहाँ रहती है? कश्मीर में. I like fish cooked in mustard oil. उसको कैसे फिश खाना पसंद है? मस्टर्ड ऑयल में फिश खाना पसंद है. Once we had gone to Goa, we ate the fish, but it tastes very different. So that means when you go to the different state or different country, the food that tastes same at your place will be different at the other place. That means कि जो भी हम फूड खाते हैं हमारी प्लेस पे यानी घर पे और सेम चीज बाहर भी खाते हैं तो क्या उनका टेस्ट सेम होता है? No, taste is different every time. My mother said that it was sea fish cooked in
कोकोनट ऑयल। नाउ उन्होंने कुक किस में की थी? कोकोनट ऑयल में। इट हैड टू बी डिफरेंट। अगर हम ऑयल भी चेंज करेंगे तो भी क्या हो जाता है? टेस्ट खाने का डिफरेंट हो जाता है। तो डिफरेंट प्लेस, सेम फूड, बट द टेस्ट विल बी। Now we'll see, he is Thomas. I live in Kerala. I really like to eat two items. Both grow in our courtyard. One grow on the tall tree and the other under the ground. Now he lives in Kerala. He loves like eating two items. दोनों उनके कोर्टयार्ड मीन्स आंगन में उगते हैं। एक तो टॉल ट्री पे उगता है और एक अंडरग्राउंड उगता है। It is great to eat boiled tapioca with any curry made using coconut. Now this is the new dish. This is famous dish of Kerala. Okay, students. It tastes very good. It tastes very good. It tastes also different. Now some more information about food. Now first question. Why is nutritious food necessary to eat? क्यों न्यूट्रिशियस फूड जरूरी होता है? सो न्यूट्रिशियस फूड इज नेसेसरी सो दैट द बॉडी गेट्स स्ट्रेंथ। हम अगर न्यूट्रिशन वाला खाना खाएंगे तो क्या होगी? बॉडी को क्या मिलेगी? स्ट्रेंथ मिलेगी, है ना, ताकत मिलेगी, तभी हम सब काम कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट, फूड गिव्स अस स्ट्रेंथ टू डू वर्क। नाउ अगर हम खाना खाएंगे तो हमको क्या मिलेगी? स्ट्रेंथ मिलेगी काम करने की। It helps the body to grow and makes the body strong enough to resist the disease. क्या होता है? अगर अच्छा फूड खाएंगे तो बॉडी स्ट्रॉन्ग बनेगी और हमको बहुत शक्ति मिलेगी। कोई भी अगर बीमारी आ जाए तो उससे लड़ने की भी क्या मिलेगी? शक्ति मिलेगी। तो इसीलिए हमको फूड अच्छे से सारे न्यूट्रिशंस के साथ खाना चाहिए। फ्रूट्स भी खाने चाहिए, ग्रेन्स भी खाने चाहिए, वेजिटेबल्स भी खाने चाहिए और हर तरीके के प्रोटीन फूड भी खाने चाहिए। डेयरी फूड भी खाने चाहिए। डेयरी में क्या क्या आता है? मिल्क, घी, कर्ड, ये सब हमको अच्छे से खाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट क्या होता है? हर तरीके का इक्वल अमाउंट ऑफ फूड अगर हमारी बॉडी में है, सो वी आर ईटिंग अ प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट। सब बॉडी में सबकी जरूरत होती है। स्वीट्स भी चाहिए, डेयरी भी चाहिए, वेजिटेबल्स भी चाहिए, नट्स एंड सीड्स ऑल्सो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड अदर एक्सेट्रा थिंग्स। एवरीथिंग वी शुड ईट सो दैट द बॉडी विल गेट द ऑल द न्यूट्रिशंस एंड हम लोग कैसे रहेंगे? हेल्दी। सो वी शुड ईट ऑलवेज अ balanced diet. Okay students, now next question is, one should eat a balanced diet so that the body gets all the necessary components of nutrition. सबको कैसी डाइट लेनी चाहिए? बैलेंस डाइट, ताकि बॉडी को सारे न्यूट्रिशंस मिले और कैसी रहे बॉडी? हेल्दी। फूड लाइक मिल्क, वेरियस ग्रेन्स, pulses, green leafy vegetables and ripe fruits should be there in our diet. ये सारी चीजें हमारी डाइट में होनी चाहिए so that our body gets all the components of nutrition in sufficient amount. तो हमारी बॉडी को क्या मिलेंगे? ये सारे sufficient amount में मिलेंगे, तभी क्या बनेगी बॉडी में? बैलेंस्ड डाइट बनेगी। बैलेंस डाइट इज वेरी मच नेसेसरी। सो इफ वी ईट ओनली वन टाइप ऑफ फूड एवरी डे, अगर आप रोज एक ही खाना खाओगे और डू नॉट ईट व्हाट वी डू नॉट लाइक, इट इज पॉसिबल दैट देयर मे बी डेफिशिएंसी ऑफ सम न्यूट्रिशंस कंपोनेंट्स इन आवर बॉडी व्हिच कैन लीड टू डिजीज। अब इसका क्या मतलब है? अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन ऑफ डाइट नहीं खाएंगे, हर रोज बस एक ही खाना खाएंगे, हर रोज बस मैगी, पास्ता, बर्गर, ये सारी चीजें खाएंगे, तो क्या बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा अगर न्यूट्रिशन नहीं होंगे प्रॉपर बॉडी में? तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए क्या बोलते हैं? सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, पल्सेस, सब कुछ
कुछ अच्छे से खाना चाहिए. Okay students, now next, see, these are the some of the grains picture. Rice, गेहूं, corn, ये सब क्या होते हैं? ये सारे होते हैं grains. सब क्या है? किसके फोटोज हैं? किसके पिक्चर्स डाले मैम ने? These all are the grains. Now next are the pulses. Pulses यानी सब तरीके की दाल होती है. मम्मी बोलती है आज मैंने दाल बनाई है, मूंग दाल, उड़द दाल एंड चना दाल एक्सेट्रा. These all are, what are these? These all are the pulses. ये सब क्या होती हैं? Pulses के pictures हैं. Okay students, is that clear to you, grains and pulses? Now, some of the good habits should be remembered. You should always remember these good habits in your day-to-day life. This is very much necessary. Food should be chewed well. फूड को कैसे खाना है? एकदम अच्छे से प्रॉपरली च्यू करके. वेरियस पल्सेस शुड बी ईटन ड्यूरिंग द वीक. वीक में क्या आना चाहिए? कुछ ग्रेन्स तो कुछ पल्सेस भी खाने चाहिए. फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स शुड बी ईटन एवरी डे. हमको कैसे वेजिटेबल्स खाने? ग्रीन वेजिटेबल्स. ग्रीन वेजिटेबल्स खाना इज वेरी हेल्दी. फ्रूट शुड ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ डाइट. ऐसे नहीं सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स ही खाएं, हमको इक्वल अमाउंट में फ्रूट्स भी खाने हैं. टीथ शुड बी ब्रश्ड आफ्टर मील. आफ्टर योर एवरी मील यू शुड ब्रश योर टीथ सो दैट टीथ विल बी ऑल्सो हेल्दी रहेंगे. वॉशिंग हैंड्स बिफोर मील्स. When you are going to eat meal, just go and wash your hands. This is the very good habit. Now these are the some of the bad habits that you should ignore. That is eating stale food. खुला हुआ खाना खाना is the bad. क्यों? क्योंकि उसमें क्या बैठते हैं? मक्खी, मच्छर. अगर हम stale food खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे. Eating only what you like. Now you are eating only what you like. That is also a bad habit. Now eating only potatoes every day, that is also not good for our health. Eating fried food every day, रोज तला हुआ खाना is also a bad habit. Eating in a hurry. अगर हम जल्दी खाएंगे, that is also a bad habit. So students, read this chapter from your textbook. Okay? Thank you.